Hello, students. Welcome to the next class of economics. The students who are joined in this class later, they will go through the previous lectures. I will send at the end of this session. So, first of all, I want to recap or remind you about what we have learned in the previous two lectures. In the first lecture, we have learned about the features of Palampur village, a hypothetical village, about the conditions, about the farming, about the sources of factors of production, how many families are lived there, what are the proportion of Dalits in the particular village, the big village near Palampur and the big town near the Palampur, that is Sahaganj, and the near village, big village is Raiganj, that is 3 km from Palampur. Then it is a well connected village and factors of production are also available there. Now, after that we have learned about the farming in Palampur. You know that the land is fixed in Palampur village, but only 75% people are working or depending on farming. 25% people of village Palampur involved in non-farming activities. And here the land is fixed. Irrigational facilities are also very good in this village. You know, can you tell me the measurement in which the land is calculated or compare or measured? Yes, that is in the form of bigha, hectare, gunta also in the local language. Then we have learned how we can grow more from the same land, because land is limited. So, how we can produce more than one type of crop in a particular fixed land, because land is fixed. So, the people of Palampur applied different types of farming activity. They were used the modern cropping or using the modern method of production equipments, and with the help of this they are able to produce more than two type of crop in a year. And this is done due with the help of this green revolution. We have studied about the green revolution, high yielding variety seeds, and the chemical fertilizers are used by the people of Palampur to enhance the production of crops. Okay, so all these things we have learned in the previous lecture. One more topic was there, that is what will the land sustain, in which we have learned about the disadvantage of green revolutions and the land degradation, how we have to maintain the fertility of soil, and what are the impact of more and more use of pesticides and chemical fertilizers on the fertility of soil. So, these are all things we have yesterday in the previous part. इस चीज़ को हम इस स्टोरी के द्वारा हम देख सकते हैं कि गोविंद वॉज अ फार्मर विथ 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली अनइरीगेटेड लैंड. ठीक है, इस साधन नहीं है इसके पास, लेकिन जो लैंड है वो 2.25 हेक्टेयर है. ठीक है, था इसके पास. एंड विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेट द लैंड. ठीक है, वो अपने बच्चों के साथ जो है उनकी मदद से इस लैंड को कल्टिवेट करता था. बट they didn't live very comfortably. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. Some year after Govind, that this land was divided among the 3 sons.
ठीक है, एक भैंस थी और गोविंद के डेथ के बाद ये जो पूरी ज़मीन थी वो उनके 3 बच्चों में डिवाइड हो गई। तब हर एक बच्चे को कितना लैंड मिला? 0.75 हेक्टेयर इन साइज। पहले सारे मिलके 2.25 हेक्टेयर पे काम करते थे, आज 7.75 हेक्टेयर पर काम कर रहे हैं। उनके हिस्से में उतनी ज़मीन है। इवन विथ इम्प्रूव इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। आपने पहले पढ़ा कि यहाँ बिजली पालमपुर में बहुत पहले ही आ गई थी, फार्मिंग के मेथड अच्छे हो गए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर वेरी गुड, बट नाउ दे हैव वेरी लिटिल लैंड फॉर कल्टीवेशन। वही सब एक साथ थे तो ज़मीन बड़ी थी तो करना आसान था। अब क्या है, छोटा छोटा ज़मीन हो गई तो उस पर खेती करना भी, और हम बड़े फार्मिंग के मेथड्स को, जो मॉडर्न मेथड्स हैं, उनको हम यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। they have to look for additional work during the part of the year, and that's why they are depend on the non farming activity during some part of the period of the year. They are not totally depend upon the farming. तो ये कहानी ये बताती है कि कैसे कैसे लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बंटवारा हो गया, जिसके कारण ज़मीन का जो साइज है वो छोटा हो गया, एंड इट इज़ लीड्स टू लेस प्रोडक्टिव। ठीक है, जितनी ज़मीनें छोटी होती जाएंगी उस पर बड़े और मॉडर्न मेथड को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ज़मीनें छोटी होंगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा। नाउ सी हियर हाउ द लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, दीज आर द कल्टिवेटेड एरिया थ्रू विच द लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स। ओके, लैंड, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स scattered around the village are cultivated by the small farmers। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो है, वहाँ से ले लीजिए दूध। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया एंड फार्मर्स। ठीक है, जो आप कल्टिवेटेड एरिया जो देख रहे हैं, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, अगर हम जिस लेस देन 2 हेक्टेयर की बात करें, जो छोटे किसान हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 55.4% एरिया उनके द्वारा कवर्ड है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एरिया कवर्ड बाय द स्मॉल फार्मर्स एंड ओनली 44.6% आर कवर्ड बाय द बिग फार्मर हु हैव द मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। अब वही अगर बड़े फार्मर्स की बात करें तो जो लार्ज फार्म्स हैं, ठीक है, अगर बड़े एरिया को देखा जाए, ठीक है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो जो सेकंड ग्राफ शो कर रहा है इसमें 85% जो एरिया है दैट इज़ कवर्ड बाय द बिग फार्मर्स हैविंग मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, एंड ओनली 15% area is covered by or cultivated by the farmers who have less than 2 hectares of land। ठीक है, तो मेन आपको इसमें याद रखना है कि 2 हेक्टेयर से कम वालों की संख्या ज़्यादा है। दे हैव 240 families having less than 2 hectares of land and only 60 families have more than 2 hectares of land। So after learning this story and this concept, I want to ask you one question. Why do so many families of farmers cultivate such small plots of land? क्यों यहाँ पर जो छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं, क्यों लोग जो हैं जिनकी ज़मीनें कम हैं, ऐसा क्या कारण है कि ज़्यादातर लोगों के पास ज़मीनें कम हिस्से में हैं, मतलब उनके पास एरिया ऑफ कल्टीवेशन कम है, ऐसा क्यों है? क्यों वो मजबूर हैं कि छोटे छोटे प्लॉट्स में खेती कर रहे हैं? तो इसका मेन रीज़न यही है कि वो उनके परिवार डिवाइड हैं, और डिवाइड होने के कारण ज़मीनें भी बट गई। जैसे आपने अभी गोविंद का कहानी सुना, जिसमें कि पहले सारे मिल कर के एक ज़मीन पर, जिसकी जो कि 2.25 हेक्टेयर्स के आसपास थी, लेकिन वही डिवाइड होकर 0.75 हेक्टेयर पे आ गई, तो क्या हो गया, ज़मीन के टुकड़े हो गए। ठीक है, दैट्स वाई दीज पीपल्स आर only cultivated such small plots of land due to the division in the family। okay, but farm laborers come either from landless families or families cultivating small plots of land। ठीक है, तो लेबर्स हमको कहाँ से मिलते हैं? ऐसे जो कि या तो लैंडलेस है, दैट इज़ द कैटेगरी ऑफ 150 दलित्स, वहाँ से उन लोगों को लेबर मिलते हैं, या
ऐसे लेबर्स जो छोटे खेतों में काम करते हैं, जिनके पास प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो काफ़ी कम है। क्यों वो लोग यहाँ काम करते हैं? बिकॉज दोज small plots are not able to produce that such amount of produce which require for a family. So that's why they are working on different plots of land also. ठीक है, क्योंकि उनके पास जो ज़मीनें हैं वो सक्षम नहीं है कि पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकें। दैट्स वाई वो लोग दूसरे खेतों पर भी काम करते हैं। फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड। ठीक है, और जो फार्म लेबरर्स हैं, जो दूसरे खेतों में काम करते हैं मजदूरी पर, उनका उन पूरी फसल पर कोई हक नहीं होता है। ठीक है, दे आर पेड वेजेस, ठीक है, बाय द फार्मर्स फॉर हु दे वर्क। जिसके लिए लोग काम करते हैं वो लोग उनको मजदूरी देते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ grains also, in some other kind is also given to the laborers or farm laborers। ठीक है, the wages can be in cash or in kind। वो पैसे के फॉर्म में भी हो सकती है या अनाज के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, जो फार्मर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो जो हैं अलग अलग खेतों में काम करते हैं, और उनके पास खेतों का राइट नहीं, अधिकार नहीं है कि वो सारी फसल उसकी है। जिसके लिए वो काम करते हैं वो उनके बदले, काम के बदले उनको पैसा देता है या अनाज देता है। नाउ, और ये लोग खेतों में काम करते हैं। ठीक है, वेजेस वैरी, VARY, वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटीज लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग टू अनदर। और जो मजदूरी इन लोगों को मिलती है वो भी एक जैसी नहीं है। अब वो मजदूरी तय करेगी किस क्षेत्र में किस तरह का काम है, किस तरह की फसल को काटना है, बोना है। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग चार्जेस हैं। ठीक है, अलग अलग वेजेस तय की जा रही हैं। ठीक है, सोइंग के लिए अलग है, हार्वेस्टिंग के लिए अलग है। ऐसा क्यों? देयर इज़ ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ऐसा क्यों है? क्यों मजदूरी में इतना अंतर है? क्योंकि सारे लोग खेतों में काम कर रहे हैं, फिर भी मजदूरी में इतना अंतर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो रोज़गार है वो ड्यूरेबल नहीं है। ड्यूरेबल मतलब स्टेबल नहीं है। ठीक है, आज काम है कल नहीं है, फिर दूसरी जगह है। तो इस तरह के यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कमी है। दैट्स वाई देयर इज़ अ वाइड वेरिएशन in the wage rate। Okay, a farm laborer might be employed on daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year। अब वो जरूरी नहीं कि वो एक ही एक्टिविटी के लिए रखा जाएगा, वो एक दिन के लिए भी काम पर रखा जा सकता है जैसी ज़रूरत है। एक पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी खाली कटाई करना है या सिर्फ बोने के लिए बीज को तब रखा जा रहा है। ठीक, या किसी एक साल के लिए सिर्फ उसको रखा जाए। तो क्या यहाँ एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेबिलिटी एक बराबर नहीं है, स्टेबल नहीं है। दैट्स वाई दीज पीपल्स आर गेटिंग अ वेरी लो वेज रेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेजेस के लिए वेज काफ़ी अंतर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, जो फार्म लेबर्स हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है इन अकॉर्डिंग टू द डिमांड।